Thank you, Jesus. Thank you, wonderful Holy Spirit. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord, धन्यवाद for परमेश्वर your mercy and for your grace this morning. और आपकी दया और आपके अनुग्रह के लिए सुबह Thank you, Father. धन्यवाद Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु Wonderful Holy Spirit of God. प्यारे पवित्र आत्मा Take complete control of everything. पूरी तरह से नियंत्रण ले लो हर एक चीजों का Greetings to you all in Jesus' name. और सभी का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से And we thank the Lord that we have been connected once again online. और धन्यवाद करते परमेश्वर का कि फिर से हम और एक बार ऑनलाइन जुड़े And I हैं thank you all that you all have been connecting online from so many days. God bless you all. और धन्यवाद करते सभी का कि सभी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं उसके लिए सभी को धन्यवाद Let us pray right now. और आइए हम प्रार्थना And I करेंगे believe God is up to something supernatural, something mighty this morning. और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर बहुतायत से कुछ काम करने वाले हैं इस सुबह God is up to something this morning. परमेश्वर कुछ तो काम कर रहे हैं इस Come on, सुबह let us confess, let us declare into our life that God is up to something this morning. और आइए हम घोषित करेंगे हमारे जीवन में कि परमेश्वर आज सुबह कुछ हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं God is up to something this morning. परमेश्वर इस सुबह कुछ तो कार्य कर रहे हैं हमारे जीवन में Hallelujah. हालेलुया God is about to do something into our lives this और morning. परमेश्वर इस सुबह हमारे जीवन में कुछ तो कार्य कर रहे हैं God is about to do something into our lives this morning. और परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ तो कार्य कर रहे हैं Thank you, Father. धन्यवाद पिता Father, in Jesus' name we thank you. और पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं Lord, we know this morning is your morning and you're about to do something into our life right प्रभु now. हम जानते हैं कि ये सुबह आपकी सुबह और हमारे जीवन में कुछ तो कार्य कर रहे हैं Father, we thank you for all the healing, for all the miracles, signs, wonders, all the provision that you have been, Lord, you have been giving us. We thank you for everything, Lord. और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी सारी क्षमताएं के लिए आपकी सारी जरूरतों के लिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद करते Father, we हैं thank you for everything, Lord. धन्यवाद करते हैं हर एक चीजों के We लिए thank you for everything, Holy Spirit. धन्यवाद करते हैं हर एक चीजों के We लिए thank you, Lord, for everything. धन्यवाद करते हैं हर एक चीजों के We लिए thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु In Jesus' name we pray. और यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करेंगे Amen. आमेन We welcome you all in the name of Jesus और Christ. सभी का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से And today is the day that the Lord has made. और आज का वो दिन परमेश्वर ने बनाया है Hallelujah. Today is the day that the Lord has made. और आज का दिन परमेश्वर ने बनाया And the है Bible says we will rejoice and be glad in it. और बाइबल कहता है हम उसमें आनंदित होंगे So today we are going to meditate on the word of God. और आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे Break free in Christ. और यीशु मसीह में आजाद होना Break free in Christ. और यीशु मसीह में आजाद होना You know, many people, even after coming to the knowledge of God, they are not, break free. They are not free. और बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानने के बाद भी वो छुटकारा नहीं पाते हैं But today is the day लेकिन आज का वो दिन है that we will have break free in Christ. कि आज हमारे जीवन में हम छुटकारे को पाएंगे We will see the healing, we will see deliverance, signs, wonders, everything that we are expecting. God is answering your prayers this और जो morning. भी हम चाह रहे हैं जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे चंगाई हमारे छुटकारे का इस वक्त परमेश्वर सभी की प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं Amen. आमेन So, break free in Christ. और यीशु मसीह में छुटकारा Come on, पाना touch somebody, tell your neighbor and tell them, break free in Christ. और किसी को छू कर कहिए यीशु मसीह में छुटकारा पाना Today is the day that God is, setting us free. और आज का वो दिन है जहाँ परमेश्वर हमें छुटकारा दे रहा है Today is the day that God is setting us free. और आज का वो दिन है जहाँ पर परमेश्वर हमें छुटकारा दे रहा Today is है the day of our breakthrough. और आज का वो दिन है हमारे विजय आश्रम का No matter what the world has told you, but today is the day that God is setting you free. और कोई बात नहीं संसार ने कुछ भी क्यों ना बोला होगा लेकिन आज परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहे हैं Amen. आमेन So what break free means? और छुटकारे का मतलब क्या है Break free means to escape. और ब्रेक फ्री छुटकारे का मतलब है कि एस्केप Amen. आमेन Break free means to escape unpleasant situation or things. और छुटकारे का मतलब है कि जो चीज से आप छुटकारा नहीं पा सकते उसे छुटकारा पाना From unpleasant situation and things into your life. और आपके जीवन में जो परिस्थिति है उस चीजों में से To break free means so many years, so many months, so many days you were attacked and attached. But now is the time that God is breaking that things into your life and setting you free. और छुटकारे का मतलब है कि इतने सारे सालों से इतने सारे महीनों से आप किसी चीज से बंधन में हो या किसी चीज से आप एकदम से जुड़े हुए हैं परमेश्वर उस चीजों से आपको छुटकारे दे रहे हैं आज Amen. आमेन So break free means to escape.
unpleasant things or situation. और छुटकारे का मतलब है जिस परिस्थिति से आप बाहर नहीं निकल सकते उस चीजों से बाहर निकलना। And today is the day that all will break free from many things from our lives. और आज का वो दिन है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने जीवन में छुटकारे को पाएंगे। Amen. Today is the day that you will be break free. You know, you will move into freedom, deliverance in your life. और आज का वो दिन है जहाँ पर अपने जीवन में आप बहुत सारी चीजों से छुटकारा पाओगे। And it is very necessary for a child of God to experience this freedom. और बहुत ही जरूरी है परमेश्वर की संतान होने के नाते ये सारी चीजों को अनुभव करना। So there are a couple of things that God is going to set us free this morning. और इस सुबह कुछ चीजें हैं परमेश्वर जिससे हमें छुटकारा देने चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। God is going to set us free this morning. परमेश्वर हमें सभी लोगों को छुटकारा देना चाहते हैं सुबह। Not by man, not by words, not by anything else, but through the power of the Holy Spirit, you are going to be set free this morning. और कोई मनुष्य के द्वारा नहीं, कोई शब्दों के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप सभी लोग छुटकारा पाओगे। The Bible says gospel is not only about, it does not comes only with the word, but also with the power. और बाइबल कहता है, सुसमाचार कहता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य शब्दों से नहीं आता है लेकिन सामर्थ के द्वारा आता है। Hallelujah. It is not about word. वो सिर्फ शब्दों का ही नहीं है। Whatever we read, it is just not the word, but it is the power of God into your life. और जो भी हम पढ़ते हैं वो सिर्फ शब्द ही नहीं लेकिन परमेश्वर का सामर्थ हम सभी के जीवन में। Many people have a problem with gospel also. और बहुत सारे लोग जो है उनको सुसमाचार से भी कुछ समस्या होती है। You know, when we share the word, जब हम वचन को बांटते हैं or when these people, और जब ये सारे जो लोग हैं, you know, when they hear the word, जब वो वचन को सुनते हैं, outside they are, you know, they smile, very happy. और बाहर जो है वो बहुत ही से मुस्कुराते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। But inside they hate every word because they know that it is the power of God. लेकिन अंदर ही अंदर वो हर एक शब्द से बैर रखते क्योंकि वो जानते कि वो परमेश्वर का सामर्थ है। They are not the lover of word. और वो परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले नहीं हैं। Why? Because they know that the word that we are talking about is the power. क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जिन शब्दों के बारे में हम बात करते हैं वो सामर्थ की बात कर रहे हैं। So I want to tell you, my dear friends, never be ashamed of the gospel. और मैं कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, कभी भी सुसमाचार के लिए आप शर्म मत बनिए, शर्म मत कीजिए। Never be ashamed because I stand boldly in the name of Jesus because I know the word that is in my life is just not mere word, but it is the power of God of transformation. क्योंकि सुसमाचार के लिए कभी भी आपके जीवन में शर्म मत कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस वचन को लेकर मैं चलता हूँ आपके जीवन की बदलावट के वचन है। The main reason that you are still in the bondage, you are still stuck where you are, is because you don't allow God to set you free. और वो कारण है कि आप उसी तरफ एक जगह पर रुके हो जाओ, बंधनों से छुटकारा नहीं पाते क्योंकि आप परमेश्वर को मौका नहीं देते कि वो आपको छुटकारा दे। The main problem of you getting into bondage is because you are not bold enough to accept that the word that you read, the word that you confess is just not word but the power of God. और वो कारण है कि आप एक बंधन में हो, आपने छुटकारा नहीं पाया है क्योंकि आप साहस रीति से परमेश्वर के वचन को नहीं घोषित करते हो, इसीलिए आप वहीं पर अटके हो जहाँ पर आपको। You know, I laugh because many people are afraid confessing, declaring the word. और मैं हंसता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं परमेश्वर के वचन को घोषित करने के लिए। They are afraid of people more than God. और परमेश्वर से ज्यादा वो लोगों से डरते हैं। But I want to tell you, the time has come that the sons and daughters of God has to rise up with the word and confess and declare boldly, because that is the power that will transform you. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि समय आ गया है परमेश्वर के बेटा और बेटी के लिए कि वो साहस रीति से परमेश्वर के वचन को उठ खड़ा होकर अपने जीवन को बदले। Amen. आमीन। The time has come और वो समय आया है that let the word arise in your life. कि जो वचन है आपके जीवन में उठ खड़ा हो जाए। Let the word transform, let it change, and let it break you, and let it make you into a new creation. और जो वचन है आपके जीवन में आए, आपको तोड़े और आपको एक नई सृष्टि बनाए। Amen. आमीन। Many of us, we don't want to be broken. और हम में से बहुत सारे लोग टूटना नहीं चाहते हैं। We want spoon feeding. हमें से चम्मच से खाना जरूर चाहिए। Many of us, you know, we are born with a silver spoon also. और बहुत सारे हम में से लोग ऐसे चांदी की चम्मच से के साथ भी जन्मे हैं। Okay, that means in life you never achieved anything, you never did anything on your own. और इसका मतलब आपके जीवन में आपने कुछ हासिल नहीं किया, खुद के मेहनत से भी कुछ हासिल नहीं किया। But you are dependent on somebody for your future. लेकिन आपके भविष्य के लिए आप किसी और पर निर्भर करते हो। I want to tell you, I want to declare this in the name of और Jesus. मैं कहना चाहता हूँ, घोषित करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। You might be born with a silver spoon, और शायद आप ऐसे चांदी के चम्मच से जन्मे होंगे, but our God
लेकिन हमारा परमेश्वर, the scripture says, the word says, और वचन कहता है, those who trust in the Lord will never be put to shame. और जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो कभी भी शर्म में नहीं जाएगा। God is going to lift up people who will trust on Him, who have faith in Him, and He will transform their lives and take them from one level to another और जो level. परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को ऊंचा उठाकर उनके जीवन को बदलने वाले हैं। And I want to see this, I want to see this, I want to see this from our own eyes, and we have to desire that, yes Lord, we want to see your glory into our life. और हमें खुद की आंखों से ये इच्छा रखना है, कहना है, हाँ परमेश्वर, मैं मेरे बदलावट के लिए रुका हूँ, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। Yes Lord, he or she may be born with a silver spoon, but now is the time that I will be born out of your glory. और हाँ परमेश्वर, शायद वो चांदी की चम्मच से जन्म होगा, लेकिन समय की मैं भी परमेश्वर की महिमा के साथ जन्मूं। Hallelujah. हालेलुया। I am ready to serve you. और मैं तैयार हूँ आपकी सेवा करने I के am लिए। ready to listen to your मैं voice. तैयार हूँ आपकी आवाज सुनने के लिए। I am ready to accept and change and walk into your glory. और मैं तैयार हूँ आपकी इस वचन सुनने के लिए, उसे ग्रहण करने और आपकी महिमा में चलने के लिए। But this morning, pray to the Lord, Father, whatever happens, I am ready, but I want to see your glory. और इसमें प्रार्थना करो, परमेश्वर कुछ भी क्यों ना हो, मैं तैयार हूँ, लेकिन आपकी महिमा मुझे देखनी है। Hallelujah. हालेलुया। I am ready to see your glory. मैं तैयार हूँ आपकी महिमा को देखने के लिए। I am ready to see your और breakthroughs. मैं तैयार हूँ आपके विजय आश्रम को देखने के लिए। Separate me, break free me from things. और मुझे अलग करो, मुझे चीजों से छुटकारा दो परमेश्वर। The first thing that this morning that we are going to pray और पहला चीज जो इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं, is to allow God to break free from the sickness. और वो परमेश्वर को मौका दे कि परमेश्वर में सारी बीमारियों से छुटकारा दे। Let us turn to Exodus chapter 23 verse 25. और आइए हम जाएंगे निर्गमन 23-25 में। Exodus chapter 23 verse 25. और हम जाएंगे निर्गमन 23 के 25 में। Let us read that. आइए हम पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। What the word says? वचन क्या कहता है? The first thing, let's read again. और पहला ही चीज हम फिर से पढ़ेंगे। Yes. तू अपने परमेश्वर यहोवा की Yes. उपासना करना। क्या करना? The first thing, God is giving us the key to break free. और पहला चीज परमेश्वर हमें वो चाबी दे रहा है छुटकारे पाने के लिए। It says यहोवा की उपासना करना. That means worship the Lord. इसका मतलब परमेश्वर की उपासना करना। Amen. आमेन। The first thing that the Lord tells us to do is to worship Him. और पहला चीज परमेश्वर हमें ये आज्ञा दे रहे कि हम उसकी आराधना करें। Now worship is not singing 2-3 songs and sleeping back. और आराधना का मतलब ये नहीं है कि हम 2-3 गीत गाए फिर से हम सो जाएं। Worship is more to praise Him, to acknowledge Him, to expect things from Him. और आराधना का मतलब है हम उसकी स्तुति आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा करें। That is worship. और उसे कहते हैं आराधना। The first thing what God is saying that if you want breakthrough into your healing, start worshiping me. और परमेश्वर कहते हैं कि पहला चीज अगर आपको आपके जीवन में चंगाई चाहिए तो आप पहली चीज कीजिए, आप परमेश्वर की आराधना कीजिए। Now many intellectual people, they ask them, if God heals, then why there is so much of और sickness? बहुत सारे जो समझदार लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर परमेश्वर चंगा कर सकता है तो बीमारियां क्यों? We are living into a fallen world, और हमें गिरे हुए जगत संसार में रहते हैं, and sometimes और कभी-कभी we are exposed to weaknesses, और हम ऐसे हमारी जो निर्बलता है उससे हम ऐसे प्रकट होते हैं, and also your faith is down. और आपका विश्वास भी नीचे होता है। See, I want to tell you this and make this very clear. और मैं कहना चाहता हूँ, साफ रीति से बोलना चाहता For हूँ। those people who are watching and have this question into your heart and mind, और जो लोग देख रहे हैं, जिन लोगों के पास ये सवाल है अपने दिल और दिमाग में, those who think that sickness is from God. और जो लोग सोचते हैं कि जो बीमारी है वो परमेश्वर की ओर से है, If sickness is from God, अगर बीमारी परमेश्वर की ओर से है, if everything that is bad is from God, और अगर हर एक चीज जो बुरी है या दुष्ट है अगर वो परमेश्वर की ओर से है, then I don't think that Jesus should have gone on the cross and he should have said it is finished. और मुझे नहीं लगता है फिर यीशु मसीह क्रूस पर जाकर कहते होते कि सब चीज पूरा हो चुका है। Okay, there is no relevance of the blood of Jesus and on the and of the cross if God gives you the sickness. और कोई मतलब नहीं यीशु मसीह की क्रूस का और यीशु मसीह के लहू का अगर परमेश्वर बीमारी देता है। So number one, God is a loving God. और पहला चीज परमेश्वर वो प्रेम करने
करने वाला परमेश्वर What do we है। acknowledge God as? He is our Father. और हम परमेश्वर को कैसे हम मानते हैं कि वो हमारे पिता है। Can a father give sickness to his children? और क्या एक पिता अपने बच्चों को बीमारी दे सकता है? The answer would be no. और उत्तर होगा नहीं। In fact, the father will always heal his children. पिता जो है अपने बच्चों को हमेशा चंगाई देते हैं। Wants to deliver us. वो हमें छुटकारा देना चाहता है। Sometimes many sickness it comes because of our stupidity. और कभी-कभी बहुत सारी बीमारी आती है हमारी मूर्खताओं की वजह से। Then we blame God. You know why God didn't protect us? But God gave everything to us. He already spoke to us. और फिर हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं कि परमेश्वर तूने मेरी सहायता क्यों नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने पहले से हर एक चीज दिया है हमें। If we are going against God, और अगर हम परमेश्वर के विरोध जाते हैं, how can God protect us there? और परमेश्वर हमें कैसे सहायता कर सकता है वहाँ पर? So the first thing God says, Exodus 23:25, it says, worship me. और पहला चीज परमेश्वर निर्गमन 23:25 में कहता है कि मेरी आराधना, मेरी उपासना करो। Yes, let's read further. तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। तब वह, when we worship, when we connect with Him, then what happens? Then there's a result. और जब हम उसकी आराधना उपासना करेंगे फिर क्या होगा? फिर हमें हल मिलेगा। When you worship the Lord, there is a result. और जब हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं तभी एक हल होता है। And what God is promising us there? और परमेश्वर हमें क्या ऐसे प्रतिज्ञा दे रहे हैं यहाँ That पर? I will bless your food and water. कि मैं तेरे जल और तेरे अन्न को आशीष दूंगा I will heal you. और मैं तुझे चंगा करूंगा। Let's read the scripture once फिर again. से हम वचन को पढ़ेंगे। Yes. निर्गमन 23:25। Yes. तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा. That means those who are sick, God is going to heal them there. इसका मतलब जो लोग बीमार है, जो लोग ऐसे बीमार है, परमेश्वर उनको चंगा करेगा। Even the food and water that we eat needs to be blessed. और जो हम खाना और जल भी खाते पीते हैं उसे भी आशीषित होना है। See, the scripture is very clear. When you worship the Lord, देखो वचन बहुत ही साफ कहता है कि जब आप परमेश्वर की आराधना स्तुति करते He's हो going to bless your provision. और वो आपके सारे जरूरतों को आशीष He's देगा going to sanctify. He's going to wash clean everything that you get. और जो आपको मिलता है वो उसे शुद्ध करके आपको देता है। All the provision, all the sources are washed by the blood of और Jesus. सारे जरूरतें, हर एक चीज परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किया जाता है। And what the scripture says और now? वचन क्या कहता है अभी? I will heal those who are sick among और you. जो लोग बीमारी है, जो लोग रोगी से जकड़े हुए, मैं उन्हें चंगाई दूंगा। So the first scripture, the Lord says, break free from your sickness. और पहला वचन परमेश्वर कहता है अपनी बीमारियों से तुम आजाद हो जाओ। Many people who are so-called wise people, they call sickness to themselves. और बहुत सारे लोग जो बुद्धिमान लोग कहलाते हैं वो बीमारियों को अपने आप ही पुकारते हैं। They don't declare healing, they don't confess healing, but they call sickness. और वो चंगाई को घोषित नहीं करते, वचन को घोषित नहीं करते अपने जीवन में, लेकिन बीमारियों को अपने आप ही बुला लेते I हैं। have seen people cursing their own life, cursing their own body, and then blaming God what God did. और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने खुद के जीवन को श्राप देते, खुद के जीवन पे अलग अलग शब्द बोलते, फिर परमेश्वर को दोष लगाते कि परमेश्वर ने क्या किया मेरे जीवन में। What the word says, वचन क्या कहता है? whatever you confess out of your mouth, और वचन क्या कहता है कि जो भी आप अपने मुंह से घोषित करते हो, the tongue has the power of life and death. और आपकी जुबान सामर्थ्य जीवन और मृत्यु का। If you're confessing sickness, if you're confessing death, it will come to your life. और अगर अपने जीवन में आप ऐसे मृत्यु को घोषित करते हो, आपके जीवन में मृत्यु भी आएगा। Then don't blame God that why no healing. No, because you are desiring death. You are desiring sickness. You are cursing your body. You are cursing yourself. How can God heal you there? और फिर आप परमेश्वर को दोष मत लगाओ कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में काम क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने अपनी जुबान से मृत्यु को बुलाया है, आपने अपने जुबान से सब गलत शब्दों को पुकारा है। You know, many stupid people, they say, I don't want to live. और बहुत सारे जो मूर्ख लोग होते हैं वो कहते हैं मुझे जीना ही नहीं है। Something happens in their life and actually they don't live there. और कुछ तो होता है उनके जीवन में, सच में वो नहीं जीते हैं। How can God heal you? How can God intervene into your life when you are not giving Him the authority? और परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई को कैसे कार्य में लाएंगे? परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम करेंगे जब उनको अधिकार ही नहीं देते? So the first thing God is saying this morning that you need to break free from your sickness. और पहला चीज परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको अपने बीमारी से छुटकारा पाना चाहिए। Second thing, दूसरा चीज, break free from your anxiety. और जितने भी आपकी चिंता है उनसे आप स्वतंत्रता हो जाओ। Let us turn to 1 Peter chapter 5 verse 7. और आइए हम जाएंगे पहले पतरस में
1 Peter chapter 5 verse 7. और पहला पत्रस 5:7। Thank you, Jesus. और हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 5:7 1 Peter chapter 5 verse 7. और पहला पत्रस 5:7। Thank you, Lord. So I want everyone to get their Bibles, remove the scripture, read along with us. और मैं चाहता हूँ सभी लोग अपने वचन को निकालें और हमारे साथ पढ़ें। You know, don't just listen, but also take. Always, whenever you connect with us, always have the Bible with you. Always has a notepad with you, so that you can make notes and you can read the word along with और us. जब भी आप हमारे साथ वचन के पढ़ते हो, अपने वचन, अपने बाइबल को लेकर बैठिए, अपनी किताब को लेकर बैठिए, ताकि आप नोट्स बनाएं। God can speak to anybody at any और time. परमेश्वर किसी भी समय किसी से भी बातें कर सकते Yes, हैं। 1 Peter chapter 5 verse 7. और आइए हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 5:7। Yes. अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। Hello. आप क्या डाल दो? All the anxiety that you have. और अपनी सारी चिंता जो भी आपके अंदर है, Whom do we give? हम किसे देते हैं? Do we give it to our people? और क्या हम हमारे लोगों को देते हैं? Your neighbor? आपके बाजू वाले को Your देते friends? हैं? अपने दोस्तों को देते हैं? They are not going to take your anxiety. Listen to me. और वो आपकी चिंताओं को नहीं लेंगे। मेरी बात को सुनिए। They are going to increase your anxiety. और वो आपकी चिंताओं को बढ़ाएंगे। They are going to increase everything into your life. और आपके जीवन में हर एक चीजों को वो बढ़ा देंगे। If you take a problem to somebody, instead of praying, instead of giving a solution, they are going to exaggerate. They are going to drag. They are going to increase. और अगर अपनी समस्या आप किसी के पास लेकर जाओगे, वो उससे बढ़ा देंगे, उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन सब जगह फैला देंगे। Hardly you will find people who are praying for you. आप ऐसे बहुत ही कम लोगों को देखेंगे जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Let me put this across like that. मुझे ऐसे कहने दो उसे। You don't know who is playing with you and who is praying for you. और आप नहीं जानते कौन आपके साथ खेल रहा है और कौन आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। Trust me, you don't know who is playing with you and praying for you. और मेरा विश्वास करो, आप नहीं जानते हो कि कौन आपके साथ खेल रहा है और कौन आपके लिए प्रार्थना कर रहा It is है। very important और बहुत ही जरूरी है only to be connected people who pray for you. और जो लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ आप जुड़िए। Rest all others are playing with you. और बाकी सारे लोग आपके साथ खेलते हैं। Prayers are better than playing. और खेलने से ज्यादा प्रार्थना जरूरी है। Yes, what the scripture says, we'll read वचन क्या again. कहता है, हम फिर से पढ़ेंगे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, हाँ। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्यों डालना चाहिए? Why God is saying, come to me and put all the anxiety, stress, worries on me? और क्यों परमेश्वर कहता है कि मुझ पर भरोसा करके मेरे पास और सारी चिंताओं को मुझ पर डाल There's दो। a reason that God is saying this. और एक कारण है जो परमेश्वर कह रहे हैं। He is upfrontly calling you, me, everyone to come to Him and share. और वो सामने से आपको पुकार रहे हैं, आपको, मुझे, सभी लोगों को, कि उनके साथ आके हम कुछ चीजों को बांटे। Why? क्यों? Because the Word of God says He cares for you. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपकी चिंता करता Come on, है। touch your neighbor. Tell somebody God cares for me. और किसी को छूकर कहिए, बाजू वाले को छूकर कहिए कि परमेश्वर आपकी चिंता Come करता on, tell है। somebody. Some people are still on their bed sleeping, but I want to tell them, be awake and tell somebody, God wants to come and share things with Him, and God cares for और us. कुछ लोग जो है अभी तक अपने बिस्तर पर सो रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ जागो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके साथ, आपके जीवन में आपकी चिंताओं को दूर करने आया है। Come on, rise up, get up, get away with that laziness and tell the Lord, yes Lord, you care for me. और उठ जाओ अपने, जहाँ पर भी आपको अपने आलसीपना से बाहर आओ और कहो, परमेश्वर हाँ, आप मेरी चिंता करते हो। Laziness will kill you. और जो आलसीपना है आपके जीवन में, आपको मार देगा। Come on, declare this with me. और मेरे साथ ये घोषित कीजिए। Yes Lord, all my anxieties, और हाँ परमेश्वर, मेरी सारी चिंताएं, all my worries, मेरे सारे दुख, from today, from this moment, और आज से, इसी समय से I give it to you. मैं आपको देता हूँ। I actually release, I actually give everything into you. और मैं हर एक चीज आपके ऊपर सौंपता हूँ। Father, I thank you. धन्यवाद करता हूँ। And I give it to you because your word says you care for me. और मैं आपको देता हूँ क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप मेरे लिए चिंता करते हो। I don't give it to people because they don't care. और मैं लोगों को नहीं देता हूँ क्योंकि वो मेरी चिंता नहीं करते हैं। But I give it to you because you care. मैं आपको देता हूँ क्योंकि आप मेरी चिंता करते हो। Hallelujah. हालेलुया। Many of us, we share things
with the wrong people. और हम में से बहुत सारे लोग जो है वो गलत लोगों के साथ हम चीजों को बांट देते हैं। जिसके साथ करना चाहिए उसके साथ नहीं करेंगे, जिसके साथ नहीं करना चाहिए उसके साथ करेंगे. That's where the big problem is. और वहीं पर बड़ी समस्या आ जाती है। You don't know the intention of the opposite और person. आपको नहीं पता सामने वाला व्यक्ति का जो स्वार्थ है वो क्या है। You don't know whether he's playing or praying for you. और आप नहीं जानते कि वो आपके साथ खेल रहा है या आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। But what we have observed these days, people don't like, when somebody prays for them. लेकिन हमने आजकल के समय में ऐसे देखा है कि जब भी हम किसी के लिए प्रार्थना करते तो लोगों को पसंद नहीं है। They don't like when you talk with the word, when you take the word of God. They think it is very over spiritual. और जब भी हम परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के वचन के साथ किसी से बात करते तो वो सोचते हैं कि बहुत ओवर हो जाता है। But when these people come in trouble, they only call up and say, pray for us. लेकिन जब ये लोग ऐसे दुख में आते हैं तो वो यही कहते हैं, वही लोग हमें कॉल करके कहते हैं कि आप प्रार्थना कीजिए। Why you have to go in the trouble? Pray always, not only in the storm, but also when the sky is clear. और जब कठिनाई आती है तभी क्यों आप प्रार्थना करते हो? हमेशा प्रार्थना करो। जब तूफान आता है तभी नहीं, लेकिन जब आकाश साफ है तभी भी आप प्रार्थना कीजिए। So number one, God wants us to break free from sickness. तो पहला चीज परमेश्वर हमें हर एक बीमारियों से हमें छुटकारा देना चाहते हैं। Number two, He wants to break free from the anxiety. और दूसरा चीज हर एक चिंताओं से हमें वो छुटकारा देना चाहते हैं। Everything, give it to Him, submit to Him, that's it. और हर एक चीज आप उसे सौंप दो, हर एक चीज अपने आप जो आपके जीवन में सब चीज उसके ऊपर सौंप दो। There will be situations where you cannot take control. और परिस्थिति आएगी जहाँ पर आप कंट्रोल नियंत्रण नहीं ले सकते हो। And it is very important that you listen, you hear the voice of the Lord. और बहुत ही जरूरी है उस परिस्थिति के बीच में आप परमेश्वर की आवाज को सुनो। Many people will turn up against you. और बहुत सारे लोग आपके विरुद्ध उठ खड़े हो जाएंगे। When you walk right, जब आप सही चलते हो you'll actually face persecution. तो आपको जीवन में सताव आएगा। Your closest people will start hating you. आपके सबसे करीबी लोग जो है वो आपसे बैर रखना शुरू हो जाएंगे। You will not able to understand why this is happening. और आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये सब चीजें क्या हो रही है। Something comes out of your mouth, they are ready with to give the counter. और कुछ भी चीज अगर आपके मुंह से निकलती है तो वो तैयार हो जाते हैं आपको काउंटर करने के लिए। Anything you say, they are waiting for you. और जो भी अगर चीज आप ऐसे कुछ कहते हो अपने मुंह से वो तैयार है आपके साथ लड़ाई करने के लिए। Why these things happen? और ये सारी चीजें क्यों होती है? Somewhere you are connected to the word, you are walking, and that person cannot tolerate that. और कहीं ना कहीं आप वचन के साथ जुड़े हुए हो, जो व्यक्ति है वो चीजों को देख नहीं सकता I है। always tell this, sir. मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, Irrespective of your money, your position or anything, right will always be right, wrong will always be wrong. और जो पैसा जो नाम है, जो हर एक चीज है जो सही है वो सही ही रहेगा। Irrespective of who you are, what you do, what you don't do, right will be right. और जो भी आपका नाम है, जो भी आपका पद है, कुछ भी है, लेकिन जीवन में जो सही है वो सही ही कहलाएगा। Many people, what they do is, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, they know they are in a mess. और वो जानते कि वो ऐसे कठिन परिस्थिति में है, The dirt is there, और वहाँ पे गंदगी भी है, but instead of taking the garbage out, they take the carpet up and they put all the dust and dirt down there and they put the carpet. और वो क्या करते हैं, गंदगी को बाहर फेंकने से अच्छा वो क्या करते हैं, जो अपने चटाई है, चटाई को खोल कर वो सारे गंदगी को वहाँ पे अंदर और भी घुसा देते हैं। And they think they are clean. और वो सोचते कि वो एकदम शुद्ध है। But the problem is, inside they are stinking. लेकिन समस्या ये है कि अंदर से वो बदबू मार रहे हैं। They are stinking. They are completely, in a bondage of the Satan. और वो अंदर से पूरी तरह से शैतान के बंधनों में जकड़े हुए हैं। Why? Because they didn't, allow God to break free them. क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को मौका नहीं दिया कि परमेश्वर को छुटकारा दे। Hiding all sin, hiding, getting under the carpet. All things hiding under the carpet, and then you think you are clean, but inside you are stinking. और सभी जो गंदगी है, सभी जो पाप है, हमेशा वो छुपाना, और वो सोचते हैं कि अंदर से वो शुद्ध है, लेकिन अंदर से वो बदबू मार रहे हैं। छुपाने का टाइम गया, प्रभु को बताने का टाइम आया है। Amen. Amen. This is the time. Confess boldly, and God is going to break free everything. और ये समय है कि आप हर एक चीजों को साहस रीति से आप घोषित कीजिए, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा हर एक क्षेत्र में। जब भी करने के टाइम शर्म नहीं आया, तो बोलने के टाइम why शर्म? That is the whole thing. When you committed a mistake, you didn't realize. Now confessing before God, why shame? और जब आपने वो बात को किया, तभी आपको शर्म नहीं आई, लेकिन अब परमेश्वर के सामने घोषित करना, अभी क्यों आप शर्मा रहे हो? Stress, worries, anxiety, why shame? Release it to God today. और आपकी चिंता, आपकी शर्म, जो भी चीज अपने आप पर क्यों ले, तो परमेश्वर पर सौंप दो आज हो। Let us move
to 2 Corinthians और आइए हम जाएंगे दूसरा कुरिन्थियों chapter 5 verse 17. और 5:17। So God is breaking free from your sickness. और परमेश्वर आपको आपकी बीमारी से छुटकारा दे रहा है। God is breaking free from your anxiety. परमेश्वर आपको सारी चिंताओं से आपको छुटकारा दे रहा Now है। God wants to break free from our old nature. परमेश्वर हमें हमारे पुराने स्वभाव से हमें छुटकारा दे रहा है। Amen. आमेन। He wants us to break free. और वो चाहता है कि हम छुटकारा पाए। Let us read 2 Corinthians chapter 5 verse और 17. आइए हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5:17। Yes. इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में, that means therefore anybody who's in Christ. और इसीलिए यदि कोई मसीह में है, मसीह में होना चाहिए, हाँ, in Christ, not outside Christ. You have to accept the Lord. You have to come to the knowledge of God. That's what we say in Christ. और मसीह में होने का मतलब क्या है कि आपको मसीह को ग्रहण करना है, मसीह के बाहर वाले लोग नहीं। You have to be dependent on God. आपको परमेश्वर पर निर्भर करना है। You know, many people, use a term for us, believers, and it is very funny. बहुत सारे लोग जो है वो हम विश्वासियों को ऐसे एक शब्द देते हैं, वो बहुत ही ऐसे मजाक वाला चीज है। ये prayer वाले, प्रार्थना वाले, this is the term that we usually get to hear. प्रार्थना वाले। ये शब्द है जो हम सुनने मिलता है कि ये प्रार्थना वाले हैं। हम लोग प्रार्थना वाले नहीं, हम लोग ठोकने वाले हैं। You have to get things right. और आपको चीजों को सही लेना है। We are not only prayer, but we are prayer warriors. और हम सिर्फ प्रार्थना वाले नहीं, लेकिन प्रार्थना के योद्धा हैं। The person who knows to pray, the person also knows how to win the battle. और जो व्यक्ति जानता है प्रार्थना करने के लिए, वो व्यक्ति ये भी जानता है कि अपनी लड़ाई को कैसे जीतेगा। हम लोग प्रार्थना वाले भी हैं और हम लोग ठोकने वाले भी हैं साथ में। So never underestimate the power of prayer. और कभी भी प्रार्थना के सामर्थ्य को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। More than प्रार्थना वाले, we are the sons and daughters of mighty God. और प्रार्थना करने वालों से ज्यादा हम उस जीवित परमेश्वर की बेटा और बेटी हैं। Yes, we have privileges, we have authority that God has given, and we will walk in that glory. और हाँ, हमें वो मौके हैं, हमें वो अधिकार है कि हम परमेश्वर की महिमा में चले। तो आज से प्रार्थना करना भी आता है और ठोकना भी आता है in Christ. You have to have that boldness. और आपको साहस की जरूरत है आपके जीवन में। But this boldness, how it will come? लेकिन ये साहस कैसे आएगा आपके जीवन में? जब भी पुरानी चीजें को जाने दोगे, तभी नया चीज आएगा. When you will leave your old self. लेकिन आप खुद के जब पुरानी चीजों को आप छोड़ दोगे, Where the problem is? समस्या कहाँ पर है? छोड़ना ही नहीं है. I don't want to change. मुझे बदलना ही नहीं है। I don't want to change my nature. मुझे मेरे स्वभाव को नहीं बदलना है। Nor my old habits. और मेरे पुराने सारे जो आदतें हैं उनको भी नहीं छोड़ना I है। want to walk in the same old garbage, but I want God to do something in my और life. मुझे मेरे पुराने कचरे में ही चलना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ कार्य करे। I want to ask how it is possible. और मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसे संभव है? God takes you from the garbage and puts you somewhere, but He cannot make you walk in that garbage. परमेश्वर आपको उस कचरे से उठाकर कहीं और चला देता है, लेकिन वो आपको उस कचरे में ही नहीं चला सकता है। So we have to break free from our old nature. और हमारे पुराने स्वभाव से हमें छुटकारा पाना है। Let's read 2 Corinthians 5:17. और दूसरा कुरिन्थियों 5:17 हम पढ़ेंगे। इसीलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में, therefore anybody who is in Christ, तो वह नई सृष्टि है। then what becomes? We become a new creation. हम क्या बन जाते हैं? हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। Now, how we become a new creation? और हम नई सृष्टि कैसे बनते हैं? When we are in Christ. जब हम यीशु मसीह में होते हैं। When we put on Christ. जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं। When we allow God to make us a new और creation. जब हम परमेश्वर को मौका देते हैं कि हम एक नई सृष्टि बना दे वो। The problem is many of us believe, have faith, but we don't allow God to do new things into our और lives. हमारे बीच में समस्या ये है सभी लोगों के साथ कि हम परमेश्वर को मौका देते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को मौका नहीं देते कि वो हमारे जीवन में कुछ नया चीज कर When पाए। God wants to build you, लेकिन जब परमेश्वर आपको बनाना चाहता He है, have to be broken in many areas. आपको बहुत सारे क्षेत्र में टूटना जरूरी है। But we don't want to let it go. लेकिन हमें उसे छोड़ना नहीं है। We want everything. We want our own self. We want our self-centered life. We want everything that we had, and we also want God to work with it. लेकिन हम तैयार नहीं होते कि हम सारी जो पुरानी चीजें से छोड़कर चले, और हम चाहते हैं कि हम वही पुरानी चीजों को लेकर परमेश्वर उसके साथ काम करे। I want to tell you this, sir. मैं कहना चाहता हूँ एक चीज, If God wants to make you, He will break you. और अगर परमेश्वर आपको बनाना चाहता है तो वो आपको तोड़ेगा भी। Amen. Amen. And this breaking
is for a new making. और ये टूटना जो वो एक नई सृष्टि के लिए होता है, It is not for our loss. और वो हमारे नुकसान के लिए नहीं है। There is nothing to do, it is not for ourselves going down. और वो इसलिए नहीं कि हम ऐसे नीचे गिर जाए, But it is for us to rise up once again with लेकिन Him. वो हमारे लिए होता है कि हम उसके साथ फिर से एक बार ऊंचा उठे। When people break, you might go into depression, you might go into stress, anxiety. But when God breaks, you get into a new creation. अगर आपको लोग तोड़ते हैं तो आप शायद निराश करने में जाते होंगे, आप दुखों के साथ जाते होंगे, लेकिन जब परमेश्वर आपको तोड़ता है, आप एक नई सृष्टि के साथ उठ खड़े होते हैं। It is only for a purpose that you once again can rise up and walk into His glory. और वो एक उद्देश्य के साथ होता है कि फिर से आप एक बार उठ खड़े हो जाओ, उसकी महिमा के साथ चलो। So God wants us to break free from our old nature. और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पुराने स्वभाव के साथ हम छुटकारा पाए। Many of us, we don't want to change, but we want God to do something. और बहुत सारे लोग बदलना नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते हैं परमेश्वर उनके जीवन में भी कार्य करे। Many of us, we wait for others to change and we want God to work. और बहुत सारे लोग रुकते हैं कि दूसरे लोग बदल जाए और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। But this morning, this is what the Spirit of the Lord इस says. सुबह परमेश्वर की आत्मा यही कह रही है, Everything, all the break free, all the breakthrough, everything, it starts with you. और हर एक चीज, हर एक छुटकारापन, हर एक छुटकारा जो है वो आपके साथ शुरू होता है। Amen? आमीन। Everything starts with you. और हर एक चीज आपके साथ शुरुआत होती है। It starts with one simple decision of accepting the Lord. और वो एक आसान से निर्णय से शुरुआत होता है, वो है परमेश्वर को ग्रहण करना। It starts with a firm decision that Lord, no matter whatever happens, I will serve you, no matter what. और वो एक स्थिरता के निर्णय से निर्भर करता है कि परमेश्वर कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मैं तेरी सेवा करूंगा। No matter whatever happens, Lord, whether rain or dry, whether things are working out or not working out, whether I have money or I don't have money, but my faith will not go down because I trust in you and I know you have created me. परमेश्वर चाहे बारिश रहे, चाहे सूखापन रहे, परमेश्वर कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तूने मुझे रचाया है और मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा। I will not come under a curse by trusting a man, but I will walk in the blessings by trusting in you. और किसी मनुष्य पर विश्वास करके मैं श्राप पे नहीं चलूंगा, लेकिन मैं आप पर विश्वास करके आशीषों पर चलूंगा। Amen. आमीन। So God wants us to break free from sickness, परमेश्वर चाहते हैं हम बीमारियों के साथ हम छुटकारा पाए, from our anxiety, हमारे सारे चिंताओं से from our old nature. और हमारे पुराने स्वभाव से। Let us turn to Psalms 147 verse 3. और हम जाएंगे भजन संहिता 147:3 में। God also wants us to break free from the hurts that we carry. और जो हम दुख लेकर चलते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे भी छुटकारा पाए। God wants us to release, to be break free from that hurt. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस दुख से भी छुटकारा पाए। Psalms 147 verse 3. और हम पढ़ेंगे तीसरा वचन। Let us read. वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। God heals the broken-hearted. परमेश्वर टूटे हुए हृदय को चंगा करता है Hmm. और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। He does not only heal, but the Bible says He also blesses, He also covers, He heals the wounded. और वो सिर्फ चंगा ही नहीं करता है, लेकिन उनके शोक पर मरहम पट्टी भी बांधता है। मरहम पट्टी भी बांधता है. He does not only heal, but He also treats. और वो सिर्फ चंगा नहीं करता है, लेकिन उसको ट्रीट भी करता है। What is your hurt and what is your wound today? और आज आपकी कौन सा दुख है या कौन सा दर्द है या कौन सी चोट पहुंची है आपको? People, लोग, money, पैसा, sickness. What is your hurt today? बीमारी, कौन सी चीज है आपके जीवन में? You have been rejected by people. आपको आपके लोगों से नकारा गया है। I want to understand this. मुझे ये बात समझनी है, When God accepts you, जब परमेश्वर आपको स्वीकारते हैं, how can we care whether somebody is accepting us or तो not? हमें कैसे देख रेख करें कि हमें कैसे देखें कि कोई मनुष्य हमें स्वीकार रहा है या नहीं? That means you are looking up to a man and you're not looking to God. इसका मतलब ये है कि आप मनुष्य के चेहरे को देखते हो, परमेश्वर पर नहीं देखते हो। The whole world on one side और पूरा जगत एक तरफ and God is on one side. और परमेश्वर एक तरफ। And the Bible says you and God are majority. और बाइबल कहता है आप और परमेश्वर अकेले ही काफी हो। Amen. You and God are majority. और आप और परमेश्वर अकेले
लिए ही काफी Come on, हो। declare this. I and God, we both are majority in everything. और ये घोषित करो कि आप और परमेश्वर हर एक चीज में काफी हो। Not necessary you will have people on your side. और जरूरी नहीं कि जो लोग हैं आपके साथ रहेंगे, Your own will not be on your और side. आपके खुद के लोग भी आपके साथ नहीं रहेंगे। But what matters is when God is on your side in whatever you are doing. लेकिन क्या मायने रखता है जब परमेश्वर आपके साथ है हर एक चीज जो आप कर रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। आप और परमेश्वर सब पे भारी है, सब पे काफी है. You don't need people. और आप और परमेश्वर सभी के लिए काफी, आपको लोगों की जरूरत नहीं है। More than enough. और काफी है आप दोनों। What God has given you, when God is with you, who can be against you? और जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जब परमेश्वर आपके सामने तो आपके विरोध और कौन हो सकता है? More than enough. No matter whatever position, whatever reach, no problem. But you and God are majority over everything. और कोई बात नहीं, आपके नाम जितना भी हो, आपकी पहुंच कहाँ तक भी हो, लेकिन जब आप और परमेश्वर साथ हो, सभी चीजों के लिए काफी है। लोगों का पहुंच लिमिटेड है, हमारा पहुंच हेवन तक है. Hallelujah. हालेलुया। We are connected to the kings of kings and the Lord of और हम lords. उस राजाओं के राज और प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। And काफी है. We are majority in everything. और हम हर चीज में काफी है। Amen. आमेन। So break free from your hurts. और अपने सारे दुख, चिंता और चोटों के साथ आप छुटकारा पाओ। Because God only not heals you, but He does a malam patti. He also treats you. He also gets you out of everything. लेकिन परमेश्वर आपको सिर्फ जगह ही नहीं देता है, लेकिन वो मलम पट्टी भी करता है, हर एक चीजों से आपको बाहर भी निकालता है। Today, why depression? आज ये सब निराशापना क्यों? What is the cause of stress? और ये सारी चिंताओं का जड़ क्या है? The problem is you keep the hurt inside. You don't, release it to the Lord. You don't allow the Lord to heal you. और समस्या ये है कि सारी चिंताएं जो है वो आप अपने अंदर रखते हो, आप परमेश्वर को मौका नहीं देते कि वो आपके हृदय को चंगा करे। इसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला, इसने ये किया. Everything inside, and that's why the stomach is coming outside. और हर चीज आप अंदर रखते हो, इसलिए आपका पेट जो है वो बाहर आ रहा It है। is not because of the lockdown. It is because things locked inside you. और वो इसीलिए नहीं क्योंकि लॉकडाउन है, वो इसीलिए क्योंकि आपने हर एक चीज अंदर लॉक करके रखी हुई है। All the stress, worries, you are eating it up and you are keeping it to और yourself. सारी चिंताएं, सारे जो दुख है अपने आप के अंदर ही वो आप खा रहे हो। Listen to me, we are not made for that. और मेरी बात को सुनो, हम उसके लिए नहीं बनाए गए हैं। We are not created for that. और हम उसके लिए नहीं बनाए गए हैं। What the word of God says. परमेश्वर का वचन क्या कहता है? The battle belongs to the Lord. और जो लड़ाई है वो परमेश्वर की है। Come on, declare it. The battle, my battle today belongs to the Lord. और आइए हम सब घोषित करेंगे कि मेरी जो लड़ाई है वो परमेश्वर की है। But the victory belongs to me. लेकिन जो विजय है वो हमारा है। Who is fighting your battle? और कौन आपकी लड़ाई लड़ रहा है? You are not fighting your battle. आप आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। When you give it to the Lord, He fights your जब battle. आप परमेश्वर को देते हो तो वो आपकी लड़ाई को लड़ता है। Amen. आमेन। God fights for you. God rises for you, and He gives us the victory और in Jesus' परमेश्वर name. आपके लिए लड़ता है, परमेश्वर के लिए आपको उठ खड़ा करता है, वो आपको विजय देता है यीशु मसीह के नाम से। Many people, they are into depression because they think they are going through a battle. They have to fight. No, you don't have to fight. You just have to surrender and give it to the Lord, and you will be victorious. और बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे निराशा से गुजरते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि उनकी लड़ाई है, उनको लड़ना है। मैं कहना चाहता हूँ हर एक चीज परमेश्वर को सौंप दो, परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ेंगे और वो आपको विजय देंगे। This morning, this is what the Lord says. और इस सुबह परमेश्वर यही कह रहा है। All the battles, और सारी जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, battles in houses, battles in relationship, battle in finances, at your workplace, everything, all your battle belong to me. और जितने भी आपकी लड़ाइयाँ हैं, लड़ाई आपके घर में, लड़ाई आपकी आर्थिक स्थितियों में, लड़ाई आपके रिश्तों में, सारी लड़ाई परमेश्वर की है। The Lord says, I am assigned to fight your battle. और परमेश्वर कहता है कि मैं नियुक्त हूँ आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए। This morning, this is what the Spirit of the Lord says. I am assigned to fight for you, to rise up for you, to give you the victory. और इस वो परमेश्वर की आत्मा यही कह रही कि मैं नियुक्त हूँ आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए, आपको विजय देने के लिए। When God is assigned, why are we fighting? जो परमेश्वर नियुक्त किए गए तो हम क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? The simple act of surrenderance will give us victory. और एक आसान सा कार्य है कि हम हर एक चीज को सौंप दें जो हमें विजय देगा। Trusting in Him for all the provision और सारी जरूरतों के लिए उस पर भरोसा करना will give us a victory. वो हमें विजय देगा। No matter whatever happens, God has bought us the victory. We are already victorious by the blood of Jesus. और कोई बात नहीं, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने हमें पहले से ही विजय कर दिया है। हम यीशु मसीह के लहू से विजयित है। Amen. The devil has been defeated on the cross. और शैतान जो है उसे क्रूस पर
पर हरा दिया गया है। Your sickness, your anxiety, your stress, your worries, everything has been finished on that cross that Jesus hung on. और आपकी बीमारी, आपकी चिंताएं, आपके हर एक चीज जो है वो क्रूस पर पहले से खत्म हो चुकी है, जो यीशु मसीह जब क्रूस पर गए थे। This is the word for today. The battle is the Lord and the victory is ours. और ये जो वचन है ये आज का है कि जो लड़ाई है वो परमेश्वर की है, लेकिन विजय जो है वो हमारा है। Hallelujah. Hallelujah. So we have to break free from a sickness. हमारे सब बीमारियों से हमें छुटकारा पाना है। Break free from anxiety. और सारी चिंताओं से हमें छुटकारा पाना है। Break free from our old nature. हमारे सारे पुराने स्वभाव से हमें छुटकारा पाना है। Break free from your hurts. और सारे अपने दुख चिंताओं से हमें छुटकारा पाना है। Acts 5:3 it says break free from the plans of the devil. और प्रेरित 5:3 कहता है कि सारे शैतान की योजनाओं से हमें छुटकारा पाना है। Break free from the plans of the devil into your life. और प्रेरित 5:3 कहता है कि सारे शैतान की योजनाओं से हमें छुटकारा पाना है। Let us read. आइए हम पढ़ेंगे। Acts chapter 5 verse 3. और प्रेरित 5:3 पतरस ने कहा, हे हनान्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम पर से कुछ रख छोड़े। Yes, we all know what happened in Acts chapter 5. और हम सभी जानते हैं कि प्रेरित 5 में क्या हुआ था। A nice sweet husband and wife, a couple were there. और एक ऐसे जोड़ा था, पति पत्नी थे। They sold off some of their land. और उन्होंने कुछ अपनी जमीन को बेच दिया। They got some money. और उनको कुछ पैसे मिले। Now in those days, since all were one, what they came, the Bible says, everyone, they gave their money, they gave their possession at the feet of the apostles. और उन दिनों में क्या हुआ, सब लोग एक साथ रहते थे, उन्होंने क्या किया, जितने भी उनके पास कुछ भी आया तो प्रेरित के चरणों पर, प्रेरित के पैरों पर दे देते थे। And the apostles would distribute everything as one needed. और जो प्रेरित जो थे वो क्या करते थे, वो सभी लोगों के साथ मिल बांट कर उसे बांट देते थे। So Ananias and Sapphira, they sold a land. और हनन्याह और सफीरा ने एक जमीन को बेचा। And they got some money. और उनको कुछ पैसे मिले। But they didn't give the entire money at the feet of the लेकिन apostles. उन्होंने पूरा पैसा जो है वो प्रेरित के पास नहीं दिया। And then the man of God also asked, is this what you got, when you sold? और परमेश्वर के दास ने भी पूछा कि जो तुमने बेचा है क्या वही ये सब चीज लाए हो? And they said yes. और उन्होंने कहा हाँ। They thought that they were lying to the man that was standing. और उन्होंने सोचा कि वो उस व्यक्ति से झूठ बोल रहे हैं जो वहाँ पर खड़ा हुआ था। It is not about man. और वो व्यक्ति का कुछ भी नहीं है। It is the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा की बात आती है। Stop looking up to man. Start looking into the Spirit of God. और मनुष्य की ओर देखना बंद करो, लेकिन पवित्र आत्मा की ओर देखना शुरू कर दो। They thought that we can easily cheat them. We can easily speak a lie and we'll get away with it. और उन्होंने सोचा हम आसानी से झूठ बोल देंगे, हम आसानी से वहाँ से निकल लेंगे। But what they forgot is, it was not the man that was discerning. It was the Spirit of God that was present over लेकिन there. वो क्या भूल गए थे कि वो जो मनुष्य है वो उन्हें नहीं परख रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा जो उन्हें परख रहा था। Let's read again 5:3. फिर से हम पढ़ेंगे प्रेरित 5:3। Yes. पतरस ने कहा, हे अनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली क्यों डाली? कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? किससे झूठ बोला? मेरे से झूठ बोला क्या? No, the Spirit of God. नहीं, पवित्र आत्मा से। I don't know why people lie. मैं नहीं जानता हूँ कि लोग क्यों झूठ बोलते हैं। जो है वो बोल के खत्म करो ना. There is no scope of lying. और ऐसे झूठ बोलने का कोई मौका नहीं है। See, other person may like it, may not like it, but at least you are not lying and you are very clear about what you are doing. और जो सामने वाला व्यक्ति शायद वो झूठ बोल सकता है, लेकिन आप ऐसे अपने हृदय में साफ रहिए, आप सच बोलिए। You and I here are not to please people. Listen to me. और हम और आप यहाँ पर लोगों को खुश करने के लिए नहीं, मेरी बात को सुनो। वो pleasing का time गया. Whatever is gone is dead. और वो खुश करने का समय गया, जो चला गया है वो मर चुका है पहले से। Now we all have one purpose and one goal. और हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही लक्ष्य और एक ही उद्देश्य है। To hear the voice of the Lord परमेश्वर की आवाज को सुनो and to walk according to the word. और परमेश्वर के वचन के द्वारा लेकर That's चलो। what will bring the blessing. और वही हमें हमारे जीवन में आशीष को लेकर आएगा। This lying, that lying, all these things are rubbish. और ये झूठ बोलना, वो झूठ बोलना, सब सारी जो चीजें मूर्ख वाली बातें हैं। That man is telling, what made you lie? How could you lie? You have not lied to me, but the Spirit of God over there. और उस प्रेरित उस व्यक्ति ने कहा कि Yes. तुमने मुझसे कैसे झूठ बोला? Yes. तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, लेकिन तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। Let's read it once again. आइए फिर से और एक बार पढ़ेंगे। Yes. पतरस ने कहा, Peter said, yeah. हे हनान्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? क्यों डाली? किसने डाला? Did the Spirit of God put this thing to lie? No. The devil put
into their hearts to lie. क्या पवित्र आत्मा ने ये उनके मन में डाला विचार कि वो झूठ बोले? नहीं, लेकिन शैतान ने उनके मन में वो विचार को डाला। You know, we have to self-check what spirit are we walking in, what manner of spirit are we carrying. और हमें खुद के अंदर झांकना है, खुद को जांचना है कि किस प्रकार की आत्मा को हम लेकर चल रहे हैं। Peter said, "You are not lying to me, and how could the devil control your heart?" पतरस ने कहा कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला है और कैसे शैतान तुम्हारे हृदय का नियंत्रण ले सकता है। Today it leaves with a serious question. और आज मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। You know what is that serious question? और वो गंभीर प्रश्न क्या है? Your heart, who's controlling it? और आपका जो हृदय है उसका नियंत्रण कौन ले रहा है? Who's controlling your thoughts? और आपके विचारों का नियंत्रण कौन ले रहा Who's है? controlling your actions, your behavior, your nature, the words that you speak? Who is in control? और आपका स्वभाव, आपका बर्ताव, आपका जो कार्य है, कौन उसका नियंत्रण ले रहा है? You know, many people talk nonsense, rubbish from their mouth, and they preach. How? Who is controlling you? और बहुत सारे लोग अपने मुंह से इतनी गलत बातें करते हैं, प्रचार भी करते हैं, इतनी मूर्ख वाली बातें हैं। कौन आपका नियंत्रण I ले want रहा to है? ask you, who's controlling you? और मैं कहना चाहता हूँ, कौन आपका नियंत्रण ले रहा है? Whose side are you in? और किसकी ओर आप हो? We always say God is on our side. और हम हमेशा कहते हैं परमेश्वर हमारी ओर है। I want to ask you all, are you on God's side? और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की ओर हो? 5:3. और 5:3 Yes. पतरस ने कहा, हे हनान्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? Q Dali. His question, you know, he was not concerned about the money. और उसका सवाल, वो पैसे के लिए उसका ध्यान नहीं था। Peter was not concerned about the money. और जो पतरस था उसे पैसों के लिए ध्यान नहीं था। What he was concerned of was the character. और वो किसके लिए ध्यान रख रहा था? उनका चरित्र के लिए। That how could you lose your integrity? How the devil put into your heart to lie to the Spirit of कि God? आप अपने खराई को कैसे छोड़ सकते हो? कैसे शैतान ने आपके लिए ऐसे जो है वो झूठ को अपने उनके मन में डाला? You know, we have seen many people talking about integrity but not walking in और integrity. हमने बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं हमारे जीवन में कि वो खराई की बात तो करते हैं लेकिन खराई में चलते नहीं A हैं। mature son and a daughter of God will definitely walk in the integrity because it is the very nature. It comes with the character of God. एक समझदार परमेश्वर की बेटा और बेटी जो है वो खराई पर चलेंगी क्योंकि वो परमेश्वर के चरित्र के साथ ही आता है खराई बना। There is no hide and seek. और से कोई छुपा छुपी का खेल नहीं है। Kingdom of God is not complicated. It is very easy, very straightforward, and full of blessings. तो परमेश्वर का राज्य है वो किसी भी चीज से उलझा हुआ नहीं है लेकिन पूरी तरह से साफ है, पूरी तरह से आशीषों से भरा हुआ है। What we do is when we play hide and seek, we complicate things and we move away from the purpose of God. और हम क्या करते हैं? हम चीजों को ऐसे कठिन बना देते हैं और हम परमेश्वर की सारी योजनाओं से अलग हो जाते हैं। Don't let your spiritual walk, I want to tell you this, go for a toss for anybody. और मैं कहना चाहता हूँ जो आपका आत्मिक चाल चलन है वो किसी के लिए भी ऐसे आप खराब मत कीजिए। Always remember, Jesus is our boss, और हमेशा एक चीज याद रखो कि यीशु मसीह हमारा बॉस है, not people. लोग नहीं। Now stop blaming people for your walk. और आपके चाल चलन के लिए लोगों को दोष लगाना बंद कर I दीजिए। believe this. मैं ये विश्वास करता हूँ Nor I want to give any credit for the walk, और मुझे मेरे चाल चलन के लिए किसी को भी क्रेडिट नहीं देना है nor I want to blame anybody for the walk. और मुझे मेरे चाल चलन के लिए किसी को भी ऐसे दोष नहीं लगाना है। You are walking with the Lord. और आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो। Some people may push you towards God, some people may pull you out from God. और शायद कुछ लोग आपको परमेश्वर की ओर धकेलेंगे और शायद कुछ लोग परमेश्वर से आपको बाहर खींच देंगे। But it is you who have to make a decision. लेकिन वो आप है जिसको निर्णय लेना है। Stop blaming people that, you know, because of this person I could not walk. No. Your walk is your personal decision. और लोगों को दोष लगाना बंद कर दो कि इनकी वजह से मैं यहाँ नहीं, इनकी वजह से मैं यहाँ नहीं, क्योंकि जो लोग हैं वो आपके निर्णय को नहीं लेते हैं। So today, let us pray together. और आइए हम आज एक सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। And this is what the Lord says this morning. और परमेश्वर यही कह रहे हैं सुबह, I am building you up again. मैं फिर से आपको बना रहा हूँ, फिर से आपको जोड़ रहा हूँ, I am rising you up again. मैं फिर से आपको ऊंचा उठा रहा हूँ। You have given up, और आपने अपने जीवन में हार मान लिया होगा, but I have not given up. This is what the Lord says this लेकिन morning. मैंने आपके ऊपर हार नहीं माना। यही परमेश्वर कह रहे हैं सुबह। Let us pray right now आइए together. हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। We will ask the Holy Spirit once again to heal us,
to deliver us in this moment, to heal our heart completely today. और आइए हम इस वक्त फिर से हम परमेश्वर को मांगे कि हमारे हृदय की चंगाई हमें हर चीज से छुटकारा दे इस To वक्त, take out from all the bondages today. और सारे हम हमारे बंधनों से बाहर निकले आज, To break us free today. और आज हर एक चीज से हम छुटकारा So पाए, that we can encounter, we can experience the freedom in Christ. ताकि हम हमारे यीशु मसीह में छुटकारा पाए। Let us pray right now. आइए प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। Holy Spirit, once again, we thank you for this wonderful, wonderful morning, O Lord. पवित्र आत्मा फिर से और एक बार धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के लिए। Father, we thank you, Lord, धन्यवाद करते हैं that you have blessed us through your word. कि आपने हमें आशीष दिया है वचन के द्वारा। Yes, Lord, the time has come, Lord, to break free for Christ. और हाँ परमेश्वर, समय आया कि हम यीशु मसीह के लिए स्वतंत्रता पाए। Enough, Lord, that we have been running around for the worldly things, behind the world, behind people, pleasing them, but now this is the time that we only please you and take our calling seriously, और हाँ Lord. परमेश्वर, बहुत सारा समय हो गया कि हम लोगों के पीछे भागे, लोगों को खुश करने के लिए भागे। समय कि हम अभी आपकी बुलावट को पूरा करें। Yes, Lord, Holy Spirit, this morning और हाँ परमेश्वर, इस सुबह we ask you to cleanse us. हम मांगते हैं कि हमें शुद्ध करो, Cleanse our mind, spirit, soul, body, everything, Father और God. हमारे दिमाग, हमारे शरीर, हमारी आत्मा, हमारे प्राण को शुद्ध करो We परमेश्वर। ask you to deliver us. We ask you to heal us this morning. और हम मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमें छुटकारा दो इस सुबह। Father, we may have gone wrong in many areas of our life. और परमेश्वर, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में शायद हम ऐसे गलत जा सकते हैं, But Jesus, once again, catch our hands, take us to the right direction, O Lord. लेकिन यीशु मसीह फिर से हमारे हाथों को पकड़े और सही मार्ग पर ले जाए। Father, if you will not do it, who will do it for us, O Lord? परमेश्वर, अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा हमारे लिए? Who will heal us, O Lord? कौन हमें चंगाई देगा Who परमेश्वर? will deliver us, O Lord? कौन हमें छुटकारा देगा Who परमेश्वर? will take care of our lives? और कौन हमारे जीवन का देखरेख करेगा? Whom can we depend on? हम किस पर निर्भर कर सकते हैं? Who will move in mercy and compassion on our lives? और परमेश्वर, कौन हमारे जीवन में दया और अनुग्रह से चलेगा? Who will show grace into our lives, O और Lord? हमारे जीवन में कौन अनुग्रह को दिखाएगा? Father, nobody else, but it is only you. It is only you, O Lord. प्रभु, और कोई नहीं, लेकिन वो सिर्फ आप ही हो परमेश्वर। And this morning we pray in Jesus' name. और इस सुबह प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम Father, से। even we pray for the body of Christ to be united, to come together, Lord. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह का देह भी जो एक साथ आ जाए। Father God, there are so many divisions, my Master, within the body. और प्रभु, जो शरीर में इतने सारे अंतर है परमेश्वर, But this morning we praise you. लेकिन इस सुबह आपकी स्तुति आराधना This करते morning हैं। we thank you, Holy Spirit. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर This आपका। morning we command that walls of divisions to be broken in Jesus' और name. इस सुबह हम आज्ञा देते हैं हर एक अंतर लाने वाली जो दीवार है वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम Yes, से। Lord, the land will be healed when we are not divided, when we come together, my Master. और हाँ परमेश्वर, जमीन जो है वो चंगाई पाएगी जब हम सब एक साथ आएंगे, अंतर वाला चीजें या दीवार नहीं होगी। Let every wall of divisions be broken now in Jesus' name. और हर एक अंतर वाली जो दीवार है वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम Father, से। let us honor one another, my Master. प्रभु, हम एक दूसरे का आदर करें, Not because of the people, but because we carry you. और लोगों की वजह से नहीं परमेश्वर, क्योंकि हम आपको लेकर चलते हैं। Father God, every societal thoughts, every thoughts of ending life, every depression, anxiety, right now be broken in the name of Jesus और Christ. प्रभु, इसी वक्त हर एक आत्महत्या की आत्मा, हर एक निराशापने की आत्मा, हर एक जो जीवन खत्म करने वाली आत्मा है वो छूट जाए यीशु मसीह के नाम Father, में। every sickness, हर एक बीमारी Lord, be plucked out right now in और Jesus' वो name. जड़ से बाहर यीशु मसीह के नाम We में। declare supernatural things to happen right now. और हम घोषित करते हैं अलौकिक चीज हो जाए अभी इसी Father, वक्त। we declare it in Jesus' name. हम घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम में। Lord, we believe this in Jesus' name. हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम That we में are already healed. कि हमने पहले से चंगाई पा ली है। Lord, we are not praying for healing, but we are praising for healing, O और Lord. परमेश्वर, हम चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करते, लेकिन हम चंगाई के लिए स्तुति आराधना करते हैं। We are not praying for anything, but we are just praising for the finished works that you have done in और our हम किसी lives. के लिए प्रार्थना नहीं करते, लेकिन जो हमारे जीवन में चीजें पूरे हो चुके हैं उसके लिए स्तुति आराधना करते हैं। Father, diabetes, all the kidney issues right now, Lord, in Jesus' name, it's already healed. और परमेश्वर, डायबिटीज, हर एक किडनी की समस्या वो पहले से ही चंगे हो चुके हैं। Father, any growth in the body right now, we command it to disappear in Jesus' name. प्रभु, हर एक जो ग्रोथ है शरीर में अभी हम आज्ञा देते हैं कि वो बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम Every में। stress, we command it to be out in Jesus' हर name. एक चिंता हम आज्ञा देते हैं बाहर यीशु मसीह के नाम में। Anything that comes between us and God, we command it to be broken this morning. और हर एक चीज जो परमेश्वर हमारे बीच में आती है, सुबह आज्ञा देते हैं कि वो
टूट जाए यीशु मसीह के नाम And में। Father, we declare unity. We declare unity. One word that the Lord says this morning to declare is unity. और परमेश्वर हम घोषित करते वो एक शब्द जो परमेश्वर कह रहा है वो है एक साथ एकत्रता आना। Lord, let us break, let us release, let us throw all our personal agendas. And Father, let us be united for your glory. और प्रभु सारे हमारे खुद के जो स्वार्थी विचार है हर एक चीज को साइड में रखकर परमेश्वर की महिमा के लिए एक साथ आए। Father, we pray this morning for only one agenda, the kingdom of God. प्रभु एक ही चीज के लिए प्रार्थना करते हैं सुबह वो है परमेश्वर का राज्य। Thank you, Father. We will trust on you, we depend on you, because the battle is yours and the victory is mine. धन्यवाद करते हैं हर एक चीज पर आप पे भरोसा रखेंगे क्योंकि परमेश्वर लड़ाई आपकी और विजय हमारी है। Thank you, Father. We give you all the glory and honor. और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सारी महिमा सारा आदर देते हैं। Bless those who have joined online, my Master. प्रभु जो लोग हमें ऑनलाइन जुड़े हैं उनको सभी को आशीष कर। Bless them, Father God. Release abundance upon their life. प्रभु उन्हें आशीष कर उनके जीवन में बहुत सी चीजों को ढेर। Father, make us a blessing. Make us a blessing for people, for nations, O Lord. और प्रभु हमें एक आशीष बना राष्ट्रों के लिए पूरे जगत के लिए। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Give you all the glory and honor. और सारी स्तुति सारी महिमा देते We हैं। thank you for everything. धन्यवाद करते हैं हर एक चीजों के We लिए। thank you for all the prayers that have been answered, Lord. Father, we will soon hear testimonies after और testimonies. Thank you, धन्यवाद करते Father. हैं परमेश्वर सारी प्रार्थना को जो उत्तर मिला है गवाही के बाद गवाही को हम सुनेंगे। Give you all the glory. सारी स्तुति सारी महिमा देते In हैं। Jesus' mighty name we और pray. यीशु मसीह के नाम से हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। Amen. आमेन। Thank you once again all for joining in. और सभी को धन्यवाद कि आप सभी लोग फिर से जुड़े हैं हमारे साथ। God bless you all and have a wonderful, spirit-filled, Christ-filled day और ahead. परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर पूरा हफ्ता आपके साथ रहे और परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष